Hey viewers, you're watching The Savera and I am Vidhi Joshi. The India Meteorological Department has issued an orange alert for Delhi, warning of heavy rain, thunderstorms and strong winds reaching speeds of up to 70 km per hour on Friday, May 30. The Weather Department had earlier issued a yellow alert which was later upgraded to an orange alert, prompting concerns about potential disruptions. Residents should be alert and prepared for potentially disruptive weather, the IMD said. An orange alert is the second highest warning level, indicating that the weather could cause damage or disruption. According to the IMD forecast, Delhi can expect light to moderate rain with the intensity expected to be higher on Friday. This month, Delhi has already recorded 186.4 millimeter of rainfall, the highest ever for May, surpassing the previous record of 165 mm in May 2008. The average rainfall for May is only 30.7 mm, making this year's rainfall significantly above normal. The heavy rain and thunderstorms have caused flight delays, waterlogging, power cuts and uprooted trees, raising concerns about the city's preparedness for the monsoon season. Meanwhile, the southwest monsoon is progressing faster than its usual pace this year. While it typically arrives in Delhi around June 27, the IMD has not yet announced an expected date for its onset in the capital. The monsoon reached Kerala on May 24, a full week ahead of its normal date of June 1, and was declared over Mumbai on May 26, well before the usual onset date of June 11. In the recent weeks, Delhi and the National Capital Region have experienced several severe storms, resulting in at least 12 deaths due to house collapses, electrocution and falling trees. The IMD is closely monitoring the progress of the monsoon and will announce the expected date of its onset in Delhi soon. As the weather continues to be unpredictable, residents are advised to stay alert and prepared for potentially disruptive weather. The IMD will continue to provide updates and forecasts to help residents plan accordingly. With the monsoon season approaching, it is essential for the city to be prepared for the challenges that come with heavy rainfall and strong winds. देखिए, जहाँ तक नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात है तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आज जम्मू कश्मीर के आसपास जो स्थित है। इसकी वजह से जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया का इलाका है, क्षेत्र है ज़्यादातर, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी गस्टी विंड रहने की संभावना है। अगर हम इसको स्टेट वाइज समझें तो पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में, इन स्टेट्स में जो है वो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड हो सकती है, 50-60 किलोमीटर तक की हवा चल सकती है, 60 से 70 किलोमीटर तक भी स्पीड जा सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी सेम स्थिति रहेगी, वहाँ पे तेज हवाएं चलेंगी, थंडरस्टॉर्म गस्टी विंड की संभावना जताई गई है। इसके साथ साथ हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट देख सकते हैं, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड हो सकती है। उत्तर प्रदेश कुछ स्थानों पर हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि भी आज होने की संभावना है। वहीं राजस्थान की बात करें तो वहाँ थंडरस्टॉर्म के साथ साथ डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है। हवा गति जो 50-60 किलोमीटर तक भी रहने की संभावना है, जो गस्टीनेस 70 किलोमीटर तक हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट का अलर्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए भी उससे जारी किया गया है। दिल्ली की पर्टिकुलरली बात करें तो क्या स्थिति है सर? देखिए, अगर दिल्ली के बारे में बात करें तो जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के आसपास भी केंद्रित है लोअर लेवल्स पर, जिसकी वजह से एक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग दिल्ली एनसीआर रीजन में भी। तो उसके लिए आज के लिए जो है वो लाइट रेनफॉल साथ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड हो सकती है, 40-50 किलोमीटर तक की विंड स्पीड हो सकती है। और कल जो है लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर रीजन में। इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। हवा गति कल थोड़ी सी और तेज भी होने की संभावना है, 50 से 60 किलोमीटर से लेकर गस्तें 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। ज्यादातर अनुमान यही है कि बादल छाए रहने की संभावना है और तापमान जो अधिकतम तापमान है वो भी 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पूरे सप्ताह के दौरान रहने की संभावना है। सर, ये सिचुएशन जो थंडरस्टॉर्म नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, देखिए जैसे अभी तो हम ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आज के लिए हम जैसे बोल रहे हैं येलो अलर्ट है, कल के लिए ऑरेंज अलर्ट है। इसके बाद भी ठंडी डेवलपमेंट की सिचुएशन जो है वो बनी रह सकती है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा वो चल सकती है, क्योंकि जो हमारा अनुमान है वो WD का इम्पैक्ट जो है वो आज से शुरू हुआ है, तो अगले 2-3 दिन तक रहने की संभावना है, जो करंट WD है। इसके बाद एक और WD है जो अभी अफगानिस्तान के उत्तरी भाग पर केंद्रित है, उसका मूवमेंट हम देखेंगे, उसके हिसाब से आगे फोरकास्ट दिया जाएगा। करंटली कोई नहीं कर रही है। देखिए, कल के दिन तो हीट वेव कंडीशंस कहीं भी रियलाइज नहीं हुई हैं, तो इस वजह से आज भी बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन जरूर कल और परसों जो है जो पश्चिमी राजस्थान में कुछ एक स्थानों पर हीट वेव आ सकती है, वहां 45 डिग्री टेम्परेचर जो है वो पहुंच सकता है। सर, वहीं हम मानसून की बात करें तो मानसून ने किन किन राज्यों को रीच किया है और आगे क्या बढ़ोतरी है उसके बारे में बताइए। देखिए, जहां तक मानसून की बात है, अगर हम देखें तो आज के दिन की बात करें तो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो फर्दर एडवांस हुआ है और इसमें कुछ और क्षेत्र जो है हमारा छत्तीसगढ़ का,
उड़ीसा का उसको कवर किया है, सम मोर पार्ट्स ऑफ जो उत्तरी बंगाल की खाड़ी है उसको कवर किया हुआ है, और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स थे, हमारे पूर्वोत्तर राज्य थे, उनको पूरी तरह से कवर कर लिया है। इसके साथ साथ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम, सब बंगाल कवर किया और सिक्किम को इंटायरली कवर कर लिया है आज। अनुमान ये है कि अगले 1 से 2 दिनों के दौरान जो है ये कुछ और हिस्सा जो हमारा पश्चिम बंगाल का है उसको और बिहार में जो है अगले 1 से 2 दिनों में पहुंचने की संभावना है। एक और सर्कुलेशन के बारे में आप बता रहे थे, लो प्रेशर सर्कुलेशन डिप्रेशन बन रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया जो कल था वो आज सुबह 5:30 बजे जो है वो नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल ऑफ वेस्ट बंगाल बांग्लादेश कोस्ट पर एक डिप्रेशन में तब्दील हो गया था, तीव्र हो गया था, यानी अवदाबंद बन चुका था। अभी 8:30 बजे सुबह वो और तीव्र होकर के एक जो है डीप डिप्रेशन में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है और इंटेंसिफाई हो गया है। अनुमान हमारा ये है कि ये जो सिस्टम है ये नियरली नॉर्थवर्ड मूव करेगा और ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश कोस्ट को सागर आइलैंड और खेवपारा के बीच में आज आफ्टरनून में क्रॉस करने की संभावना है। इसके चलते हुए जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे आप देख सकते हो उसको रेड वार्निंग से दिखाया गया, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इसमें इससे बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ साथ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ एक स्थानों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो सकती है, यानी कि 20 सेंटीमीटर ज्यादा वर्षा हो सकती है। हवा गति भी तेज रह सकती है। इसके साथ कल के लिए भी अरुणाचल प्रदेश और इसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और जो हमारा असम मेघालय का क्षेत्र है, जो वेस्ट बंगाल सिक्किम में, वहां भी बहुत भारी से भारी वर्षा, इसके साथ साथ कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की भी संभावना है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं उड़ीसा और गैगेटिक वेस्ट बंगाल जो गंगी पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसके लिए साथ साथ जो हम फिशरमैन है उनको एडवाइस किया गया है कि 29 से 30 तारीख को वो जो नॉर्थ बे ऑफ बंगाल और बांग्लादेश GWB गैगेटिक वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कोस्ट है, इसमें जाने से उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा हानिकारक हो सकता है। इसके साथ साथ जो है इसके कई सारे इंपैक्ट भी हो सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, पर्टिकुलरली जहां पर जो लो लाइंग एरिया है वहां पे फ्लडिंग हो सकती है, वहां पानी भर सकता है, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड हो सकता है जो प्रोन एरिया है वहां पर, और जो ट्रैवल की जो भी साधन है जैसे रेलवेज, रोडवेज, इसमें थोड़ा सा व्यवधान हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली लोग अपना सारी सतर्कता बरतें और जो भी गाइडलाइन जारी की जा रही है वो फॉलो करें। That's all for now. Stay tuned to the Savera for more updates. Do like, comment and subscribe to the channel.